محکمہ پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ میں 5 محکمے اور 2 اتھارٹی ضم چیئرمین پرائز کنٹرول ٹاسک فورس کو ذمہ داری تفویض کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سلما بٹ کو گو ہیڈ دے دیا۔ سلما بٹ کا پی اے ایم ڈی اور ذیلی محکموں سے تعارفی سیشن بھی شروع ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں راؤ دلشاد حسین سے۔ راؤ دلشاد آگاہ کیجیے گا۔ محکمہ خوراک پنجاب کو ختم کرنے کے بعد پنجاب کے نوآموز محکمے پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اب اس کے نیچے 5 ذیلی ادارے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، جن میں انڈسٹریز، ایگریکلچر اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو ذیلی ادارے تھے وہ اس کے نیچے کام کریں گے، جبکہ 2 آٹونومس باڈیز جن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پنجاب ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریگولیٹری اتھارٹی اس ڈپارٹمنٹ کے نیچے کام کریں گے۔ اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج کون ہوگا، اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا اس کے مطابق چیئرپرسن پرائز کنٹرول ٹاسک فورس سلما بٹ کو یہ ٹاسک تفویض کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے وربلی جو احکامات ہیں وہ جاری کر دیے ہیں اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے قوانین، پلاننگ اور گوداموں کی تعمیر و بحالی اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ فوڈ سیکورٹی کے ریلیٹڈ جو اشیاء خور و نوش ہیں، کتنی ضرورت ہے، کتنی اگائی جا رہی ہے اور کتنی امپورٹ کی جا رہی ہے، اس تمام جو ان کے سرویز کروا کر تمام اشیاء کا جو تعین ہے وہ یہی پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا، جس کے حوالے سے باقاعدہ جس نے ورکنگ کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ راؤ دلشاد حسین۔ افغان مہاجرین کے انخلاء کا دوسرا مرحلہ شروع، شہر کی 484 پٹھان بستیوں میں ٹارگٹ بیس آپریشن کرنے کا فیصلہ۔ پولیس، سی ٹی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے افسران کامبنگ آپریشن کریں گے۔ کامبنگ آپریشنز میں حساس ادارے کے انفرادی شناختی نظام کی مدد بھی لی جائے گی۔ پٹھان آبادی کو بیریئرز نفری کی مدد سے حساس بنا کر چیکنگ کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں گے ہمارے ساتھ عرفان ملک ہیں۔ جی عرفان ملک، حکومت کی جانب سے جو افغان مہاجرین کے انخلاء کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس کے سیکنڈ فیز کا عمل جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس کی جانب سے اس حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے پولیس اور جو دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن جو ہے وہ کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر کی 48 ایسی پٹھان آبادیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جہاں پہ 50 یا 500 سے زائد جو رہائشی وہاں پہ موجود ہیں، جن کا تعلق پٹھان قوم سے ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو وہاں پہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، جن میں افغان نیشنل بھی ہیں، ان کی بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ان کے بارے میں کہ وہ بھی وہاں پہ مقیم ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ٹارگٹ بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر کامبنگ آپریشن کریں گے ان 48 پٹھان آبادیوں میں، جہاں پہ زیادہ تر جو رہائشی ہیں وہ پٹھان ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو حساس ادارے ہیں، ان کا جو انفرادی نظام ہے شناخت کا، اس کی مدد سے، سویس جس کو کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے یہ کامبنگ آپریشن کیے جائیں گے اور تمام افراد کے گھروں میں موجود افراد اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بائیو میٹرک جو ہے وہ شناخت کے بعد ان کے خلاف، اگر وہ غیر قانونی طور پہ وہاں پہ مقیم ہوں گے یا جو کسی جرائم پیشہ ایکٹیویٹی کے اندر وہ ملوث ہوں گے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ افغان نیشنل موجود ہیں ان کے اخلاء کا سلسلہ شروع کیا۔ جی اور ابھی آپ کو بتائیں، زہریلی گیسز، دھواں، گرد و غبار شہر میں فضائی آلودگی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ شہر کی فضا انتہائی مضر صحت قرار اور شہریوں کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 239 ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے بھی کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، تو زہریلی گیسز، دھواں، اس کے علاوہ گرد و غبار شہر میں فضائی آلودگی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اس وقت سر فہرست ہے۔ شہر کی فضا انتہائی مضر صحت قرار دی جا چکی ہے۔ شہریوں کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 239 ریکارڈ کی گئی ہے اور ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے بھی کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔
अभी आपको बताएं फैसल फरीद डीजी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन तैनात हो चुके हैं, जबकि तनवीर माजिद ईडी पुकार और फरूख अतीक डीजी एक्साइज तैनात हो गए हैं। मजीद तैनाती के हवाले से बताएंगे रिटेल ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने फैसल फरीद जो है उनको डीसी पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन तैनात किया है, और तनवीर माजिद जो है उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो पुकार तैनात किया है। डॉक्टर फरूख अतीक जो डीसी पुकारा थे उनको तब्दील करके डीजी एक्साइज लगाया गया है, जबकि मोहम्मद उमैर जो डीसी चंग थे उनको तब्दील करके डीसी उकाड़ा तैनात किया गया है। अली अकबर को डीसी चंग तैनात किया है। ये हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। प्रेस क्लब में सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। क्या कहना था आपको दिखाते हैं। इस तरीके से पिछले 30 साल में जो सफ़र हमने तय किया 1996 के बाद एक अदलिया की आज़ादी का, देखिए 1996 में एक फैसला हुआ अल जिहाद ट्रस्ट के जज जो हैं सिर्फ वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर नहीं लगेंगे, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका एक बड़ा रोल होगा जजों के लगाने में। उसके बाद 2010 में 18वीं आईनी तरमीम आई, उसके तहत और 19वीं तरमीम फिर आ गई, एक जुडिशल कमीशन बना जिसमें जजों की तादाद ज़्यादा थी, बाकी भी थे अरकान लेकिन वो जजों से कम थे, लिहाजा जजों की राय जो थी वो हावी होना शुरू हो गई और हावी रही। इस तमाम अरसे में किसी ना किसी हवाले से, किसी दरवाजे से ऐसे जज आ गए अदलिया में जो बाहिम्मत थे, जो आइन के लिए, जो शख्सी आज़ादियों के लिए, वो खा आप पर बतौर सहाफ़ी पेमरा के कवानीन हो, पीका के कवानीन हो, उस हवाले से आपको हमें रिलीफ देते रहे, खड़े होते रहे वो फस्तायत के खिलाफ। ये तमाम जो अमल था 2010 के बाद, बल्कि मैं कहूँगा 1996 के बाद, इस अमल का कल ड्रॉप सीन हुआ है, इसको कल ख़त्म कर दिया गया है। कल ये कहा गया कि इन मामलात को सुनने के लिए हाई कोर्टों में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जज जो हैं वो हुकूमत मुतय्यन करेगी। एक कमीशन बना दिया गया है, उस कमीशन में अक्सरियत हमेशा हुकूमत की होगी, हुकूमती पार्टी की, और आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या है। याद रखिए, समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह कि कल हम सब के साथ एक वारदात हुई है, कल हम सब अब महकूम हो गए हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने दिफा के लिए। हमने मुकम्मल तौर पे अदलिया ने जो आज़ादी हासिल की थी पिछले 30-40 सालों में, उसमें बहुत जद्दोजहद है, आप सबकी जद्दोजहद है, सहाफ़ियों की है, पाकिस्तान के अवाम की है, वकला की है। उस जद्दोजहद का कल गला घोंट दिया गया। अभी आपको बताएं लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तहानात के हवाले से बेशतर इम्तहानी सेंटर्स में निगरान अमला ड्यूटी से गैर हाजिर होने लगा है। लॉरेंस रोड सेंटर्स में असातिज़ा की गैर हाजिरी पर इम्तिहान लेने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर बोर्ड ने गैर हाजिर असातिज़ा की रिपोर्ट एजुकेशन अथॉरिटी को भिजवा दी है। तालीमी बोर्ड का कहना है कि गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। DEO सेकेंडरी लाहौर की गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू। असातिज़ा को फौरी बोर्ड हुकाम से राब्ता करने की हिदायत जारी की गई है। अहकामात न माने तो मुतल्लिका असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का ये भी कहना है और असातिज़ा की जानिब से कहा जा रहा है कि स्कूल सरबराहान की जानिब से इम्तिहानी ड्यूटी करने की इजाज़त नहीं है। तो लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहानात के हवाले से आपको बता रहे हैं जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जुनेद। जी इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है, लेकिन इम्तिहानी सेंटर्स में निगरान अमले की जानब से जो गैर हाजिरी का सिलसिला है वो जारी, जिसकी वजह से बेशतर इम्तिहानी सेंटर्स में मुश्किलात पेश आ रही हैं कि क्योंकि निगरान अमला पहुंच नहीं था, जिसकी शिकायत जो है लाहौर बोर्ड की जानब से एजुकेशन अथॉरिटी को कर दी है। एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए असातिज़ा को फौरी तौर पर बोर्ड इंतजामिया से रब्ता करने की हिदायत की और कहा है कि फौरी तौर पर इम्तिहानी सेंटर में ड्यूटियाँ दें, बासूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल असातिज़ा का कहना है कि उन्हें स्कूल सरबराहान की जानब से ड्यूटी देने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वो मसाइल का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। और अभी आपको बताएं SI अतहर सलीम का हथकड़ी लगे मुलजिम से कोल्ड ड्रिंक मंगवा कर पीने का ये मामला है और DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने SI को मुअत्तल कर दिया है। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन को इंक्वायरी का हुक्म, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन को 3 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म सामने आ गया है। SI अतहर सलीम का हथकड़ी लगे मुलजिम से कोल्ड ड्रिंक मंगवा कर पीने का ये मामला है।
हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद हैं। आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, DIG इन्वेस्टिगेशन ने SI को मुअत्तल कर दिया है? बिल्कुल, ये फुटेज जो है वो कुछ देर पहले एक नशर की गई थी, जिसमें देखा गया था कि एक सब इंस्पेक्टर है जो कि ज़ेर हिरासत मुलजिम को अदालत पेश ले जा था, लेकिन अदालत पेश से पहले ही जो सब इंस्पेक्टर था वो मोटरसाइकिल पर मौजूद था। मुलजिम जो है उसके लिए सिगरेट्स और बोतल जो है वो लेकर आते हैं, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बताया जा रहा है कि SI अदर सलीम को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और SI इन्वेस्टिगेशन मार्टन की इंक्वायरी करने का हुक्म किया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अहकाम किया गया है कि SI इन्वेस्टिगेशन मार्टन डॉक्टर याज हुसैन जो है 3 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है उसके बाद मजीद जो सब इंस्पेक्टर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में तेजी, बेसमेंट की तकमील के बाद फ्लोर्स की तामीर और स्टील फिक्सिंग स्ट्रक्चर का काम तेज, स्टेडियम के इंक्लोजर्स पर दिन रात तामीराती काम जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का अलसुब कज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इंक्लोजर्स की अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फ्लोर्स और स्टील फिक्सिंग वर्क पर पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत भी सामने आई। काम के बेहतरीन मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने यह हिदायत जारी की और कहा कि मेगा प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। उनका यह भी कहना था कि प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। PIA के जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात में इजाफा, परिंदे टकराने के हवाले से लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है। कराची और इस्लामाबाद दूसरे, मुल्तान एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर है। मजीद जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात में जो है वो इजाफा हुआ है और 9 माह में रिकॉर्ड 83 हादसा हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी के इक़दाम करने के बावजूद जो वाक़यात है वो रुकने में नाकाम दिखाई दे रही है। कौमी एयरलाइन ने जनवरी 10 सितंबर 2024 तक परिंदे टकराने के वाक़यात की रिपोर्ट मुकम्मल की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा वाक़यात लाहौर एयरपोर्ट पर 23 रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कराची इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 वाक़यात और मुल्तान पर 12 वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तर्जमान PIA का इस बात से कहना है कि मदीना, जद्दा, दुबई एयरपोर्ट पर भी PIA का जो जहाज़ों से परिंदे टकराने का वाक़या है वो एक रिपोर्ट किया गया है और PIA के जहाज़ों से परिंदे टकराने से कौमी एयरलाइन को करोड़ों रुपए का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि मुसाफिर को भी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए जो घंटों का शिकार है वो करना पड़ा है। तो इस बात से तर्जमान जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनका कहना है कि परिंदों को भगाने के लिए एयरपोर्ट्स के ऊपर जो बर्ड शूटर है मुसलसल कार्रवाई है वो करते रहते हैं और लाहौर एयरपोर्ट की बात। शुक्रिया सईद अहमद सईद।